السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإنك هي المأوى قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا مولانا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز خواتین، مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو آج کے عظیم الشان دینی تربیت کی ہم تمام کو اجتماع میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی اس اجتماع کی حاضری کو قبول فرما اور جو کچھ تمام نے صبح سے لے کر اب تک سنا ہے ان تمام باتوں پر سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. عن الہوا. اب رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے خوف کھایا. وہ نہى النفس عن الہوا، اور اس نے اپنے آپ کو بیجا خواہشات سے روکے رکھا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، پس اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرمان میں 3 باتیں بیان فرمائی ہیں. سب سے پہلی بات، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے، یعنی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر خوف پیدا ہو جائے، وہ نہى النفس عن الہوا، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو خواہشات سے روکے رکھے تو ضرور اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا. یعنی انسان کے اندر سب سے پہلے خوف کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک ڈر نہ پیدا ہو، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں میں ڈر پیدا نہ ہو، تب تک وہ بندہ صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتا. جب خوف الہی پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو، تو پھر خود بخود وہ گناہوں سے بچنے والے ہو جاتے ہیں. یعنی انسان کے اندر
کسی نہ کسی کا خوف ضروری ہے، کسی نہ کسی کا ڈر ضروری ہے۔ جس طرح ایک بیٹی کے لیے اپنے باپ اور ماں کا ڈر ضروری ہے، ایک بیٹی کے لیے اپنے ماں اور باپ کا ڈر ضروری ہے۔ اگر ڈر نہ ہو تو انسان راستے سے بھٹک جاتا ہے، اگر ڈر خوف نہ ہو تو سیدھے راستے پر رہنا اس کا بہت مشکل ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی جب تک کسی کے اندر کسی کا ڈر خوف ہوتا ہے تب تک اس ڈر خوف کی وجہ سے وہ بہت سارے کاموں سے رکتا ہے، اور جس دن اس کے اندر سے یعنی بیٹے کے اندر سے باپ کا ڈر ختم ہو گیا، ماں کا ڈر ختم ہو گیا، بیٹی کے اندر سے باپ کا ڈر ختم ہو گیا، ماں کا ڈر ختم ہو گیا، تو پھر اس دن سے وہ بچہ یا بچی بگڑے ہوئے لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگتا ہے۔ یعنی اس دنیا میں انسان کو صحیح راستہ چلنے کے لیے ڈر خوف اس کے لیے لازم ہے۔ دنیاوی اعتبار سے جب آپ کے ساتھ آپ کے ذمہ دار ہوں تو اس وقت جو ہے انسان کی چلن بہت سیدھی ہوتی ہے۔ اصل آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب کوئی ذمہ دار نہ ہو، اس وقت آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے یا نہیں، اصل اس بات کا اندازہ اسی وقت لگایا جاتا ہے۔ اس لیے ساروں کے درمیان رہ کر بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساروں کے بیچ میں رہ کر بھی انسان گناہوں کے دلدل میں پھنسا، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساروں سے الگ تھلگ رہ کر بھی انسان مانا بندہ ہو یا بندی، مرد ہو یا عورت، وہ گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے یا گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتی ہے۔ اور وہی اگر انسان کے اندر ڈر ہو جائے تو رب تبارک و تعالیٰ کا ڈر خوف انسان کو اس کی زندگی سے بچانے والے ہو کر زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ جب ڈر ہی ختم ہو جائے، اور ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس طرح پیدا کرنا چاہیے، ہر وقت ہم یہ خیال کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے دیکھنے پر ہمیں یقین پیدا ہونا چاہیے۔ جب تک ہمارے اندر یہ یقین نہیں پیدا ہوگا کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ جب تک یقین نہیں پیدا ہوگا تب تک آپ کے اندر خوف بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ میں جو کچھ کروں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، ایک ایمان والی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھنے کا خیال پختہ پیدا کرے کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ بات مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جائے گی کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں رب تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بات آپ کے اندر اگر بیٹھ جائے گی تو پھر کسی کے کچھ کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ آپ خود بخود صحیح راستہ وقت پر نماز پڑھنا، صحیح راستہ چلنا، صحیح راہ پر قائم و دائم رہنا، یہ آپ کے اندر خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے شرط ضروری ہے کہ آپ ایمان والے ہیں۔ ایمان والے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے اندر اس بات کا یقین پیدا کریں کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں یا جو کچھ کر رہی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے گا، یہ یقین میں جب پختگی پیدا ہو جائے گی، پھر آپ جو ہے کسی بھی گناہ کی طرف آپ کے قدم نہیں بڑھیں گے، نہ آپ کی آنکھ بہکے گی، نہ آپ کے خیالات بہکیں گے، کیونکہ خیالات اور دل کی نیت یہ بہت بڑی چیزیں ہیں۔
اس کی حفاظت کرنا یہ سب سے پہلا جو ہے فریضہ ہے، سب سے پہلے ضروری چیز ہے، یعنی خیالات اور نیتوں کی حفاظت کرنا۔ جب تک ہم خیالات کی حفاظت نہیں کریں گے، جب تک ہم خیالات کو پاکیزہ نہیں کریں گے، تب تک جو ہے ہمارے لیے کامیابی بہت دشوار اور بہت مشکل ہے۔ ہمارے خیالات جس دن پاک ہو جائیں، دیکھیے انسان جو عمل کرتا ہے وہ تو انسان کا دکھائی دیتا ہے، لیکن جو نیت ہوتی ہے وہ انسان کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے، انسان کے اندر وہ نیت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، کہ تم تندرست ہو یا بیمار ہو، تم سفید رنگ والے ہو یا کالے رنگ والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے رنگ کو دیکھ کر فیصلہ نہیں فرماتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے صحت کو دیکھ کر فیصلہ نہیں فرماتا کہ یہ بہت تندرست ہے اس کے ساتھ اچھا فیصلہ کرو، یہ بہت کمزور ہے اس کے ساتھ جو ہے دوسرا فیصلہ کرو، یہ بہت مالدار ہے اس کے ساتھ الگ فیصلہ کرو، یہ غریب ہے اس کے ساتھ الگ فیصلہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو صورتوں کو دیکھ کر فیصلہ فرماتا ہے اور نہ ہی انسان کے جسموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ يَنْظُرْ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فقط بندوں کے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، یعنی تمہارے دل کتنے پاک صاف ہیں، تمہارے خیالات کتنے پاک صاف ہیں، تمہاری نیتیں کتنی پاک صاف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حساب سے تمہارے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ یعنی اگر ہماری نیت درست ہے، کیونکہ نیت انسان کو پتہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، انسان خود جو نیت کرتا ہے یہ اسی کو معلوم ہوتا ہے، نیت کسی دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر ہماری نیت درست ہے، اگر ہماری نیت پاک صاف ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھے فیصلے فرماتا ہے۔ اس لیے نیت کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ جب تک ہماری نیت پاک صاف نہیں ہوگی تب تک ہم جتنا جو چاہے کرتے رہیں، ہمارا کام وہ لوگ پسند کریں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، ہم اپنے خیالات کو پاکیزہ بنائیں، ہم اپنے دل کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو پاک صاف نہیں رکھیں گے، اور یہ پاک صاف رکھنا محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے واسطے ہو۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں، ہمارا نماز پڑھنا جو ہے فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے ہونا چاہیے، کسی کو بتانے کے لیے نہیں کہ جو ہے میں نماز پڑھتی ہوں، میں اتنے رکعت پڑھتی ہوں، میں یہ پڑھتی ہوں۔ آپ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، آپ کو ایسا نہیں کہ میں نماز نہیں پڑھنا، آپ نماز جو اگر حالت نماز کی ہے آپ کی تو ہرگز نماز معاف نہیں ہے، نماز معاف نہیں، نماز آپ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اسی لیے ہمارے بہت سارے ماں اور بہنیں جو ہیں نماز سے بہت غفلت رکھتے ہیں، اس لیے آپ سنی اجتماع میں آئے ہیں، آپ نمازوں کی پابندی کرنا شروع کریں، آپ اپنے گھروں میں جو ہے نماز کا ماحول بنائیں، آپ ایک پاکیزہ ماحول تیار کریں، آپ پاک صاف رہنے کی کوشش کریں، اپنے گھر کو بھی پاک صاف رکھیں اور خود کو بھی پاک صاف رکھیں آپ، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی اصل ہے۔ اگر آپ پاک صاف ہیں، آپ کے خیالات پاک صاف ہیں، آپ کے ارادے پاک صاف ہیں اور آپ پاک صاف رہتے ہیں، آپ کے گھر پاک صاف ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور رحمت برکت نازل فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مہربانی فرماتا ہے۔ اس لیے پاکی اور صفائی بے حد ضروری ہے، پاکی اور صفائی بے حد، جب تک آپ پاکی اور صفائی نہیں اختیار کریں گے تب تک کچھ ہونے والا نہیں۔ اگر آپ کے اندر پاکی اور صفائی اور آپ کے اندر خلوص و للہیت یہ چیز پیدا ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک ایک قدم پر ثواب عطا فرماتا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک سانس کے بدلے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کا چلنا درست ہو جائے، اگر آپ کا چلنا ڈھنگ سے ہو جائے، اگر آپ اللہ اس کے رسول کا خوف اپنے اندر رکھنے والی ہو جائے اور ہر برے کام سے اپنے آپ کو بچانے والی ہو جائے اور دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والی ہو جائے
اور آپ کے نزدیک اللہ اس کے رسول کا فرمان اہم بن جائے تو آپ کی زندگی اس دن کامیاب زندگی ہے۔ آپ اگر اللہ اس کے رسول کا خوف اپنے اندر رکھتے ہوئے دنیا کو نہ دیکھیں بلکہ آپ کو سدھرنا ہے، آپ کو اپنا دین دیکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے، دین اسلام یہ بہت بڑا دین ہے اور یہ اصل دین ہے۔ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اسلام بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے آپ اس کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمے کی دولت عطا فرمائی ہے، ہم اس کی حفاظت کریں، ہرگز ہرگز نہ ہماری آنکھیں بہکیں نہ ہمارے دل خراب ہوں، ہم اپنے ایمان و عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں اور ہر برے کام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ جب آپ اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جو ہے آپ کو اپنی محبت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت جس بندے اور بندی کو حاصل ہو جائے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب ہے، حشر میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت حبیب بن اسلم رائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ، حضرت حبیب بن اسلم رائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے کے ہیں آپ۔ حضرت حبیب بن ان سے پہلے کے حضرت حبیب بن حضرت سفیان ثوری نے بہت پہلے کے ہیں آپ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب زمانے کے حضرت حبیب بن اسلم رائی ایک اللہ والے ہیں، بڑے پائے کے بزرگ حضرت حبیب بن اسلم رائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک مرد آپ کی عادت تھی، آپ جو ہے چونکہ ان کا پیشہ تھا بکریاں چرانا، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، ان کا کام تھا بکریاں چرانا۔ اب ہم میں سے بہت سارے واقعات سنتے رہتے ہیں کہ فلاں لکڑیاں کاٹتے تھے، فلاں بکریاں چراتے تھے، یہ اس دور کے حساب سے باتیں ہیں۔ اگر آپ جو ہے آج اگر لکڑیاں کاٹنے کا تو جو ہے فارسٹ والے پکڑ کے آپ کا اندر ڈال دیتے ہیں، اب جو ہے وہ کام نہیں ہو سکتا، وہ ایک دور کے حساب سے بات ہے۔ تو خیر حضرت حبیب بن اسلم رائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جو ہے بکریاں چراتے تھے اور جو ہے آپ تنہا رہنا آپ کی عادت تھی۔ دریائے فرات کے قریب ایک مرتبہ آپ بکریاں لے کر گئے تھے، ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، ایک نیک صفت ایک اللہ والے کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ وہ جب دیکھتے ہیں، وہ نیک انسان جب دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی ساری بکریاں جو ہے سکون سے چر رہے ہیں، کیونکہ بکریوں کی عادت ہوتی ہے اگر چرانے والا ساتھ نہیں رہا تو جو ہے بکریاں ادھر ادھر بھاگنا شروع کرتی ہیں، بکریاں جو ہے ادھر ادھر بھاگتی ہیں، ادھر ادھر بھاگنا شروع کرتے ہیں، بکریوں کی عادت ہوتی ہے اگر کھلا چھوڑو تو بکریاں ایک جگہ نہیں بھرتی ہیں، وہ جو ہے ہر جگہ چلتے جو ہے پھرتی رہتی ہیں۔ تو حضرت حبیب بن اسلم رائی آپ نماز پڑھ رہے تھے، وہ بندہ خدا دیکھتا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی بکریاں سکون سے ایک ہی جگہ چل رہی ہیں۔ وہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ نماز پڑھے اور اس کی بکریاں ایک ہی جگہ چلے۔ پھر کیا دیکھتا ہے کہ وہاں جو ہے بھیڑیا بیٹھا ہوا تھا، ایک پتھر کے اوپر بھیڑیا بیٹھا تھا اور ساری بکریاں، بھیڑیا سمجھتے تو آج جیسے کہتے ہیں ہمارے علماء نے یعنی بکریاں پکڑنے کے واسطے جو بکریاں پکڑتا ہے، بکریوں کی گردن سے جو پکڑ کر خون جو چوستا ہے، بھیڑیا جو ہے یعنی جو بکریوں کو کھانے والا ہے، جو بکریوں کا خون چوسنے والا ہے، بھیڑیا خود بیٹھ کر جو ہے وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ بھیڑیا بیٹھا تھا، بھیڑیا کو دیکھ کر بکریاں جو سکون کے ساتھ ایک ہی جگہ چل رہے تھے، ادھر ادھر نہیں جا رہے تھے۔ وہ دیکھنے والے دیکھ کر بڑا تعجب ہوتا ہے ان کو کہ جو ہے یہ بھیڑیا جو ہے بکریاں کھانا، لیکن اس کے بجائے یہ خود حفاظت کر رہا ہے۔ بھیڑیا جو ہے بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے، یہ بکریوں کو کھانے والا ہے لیکن یہ خود حفاظت کر رہا ہے۔ اتنے بڑے کامل بزرگ ہیں، اتنے کمال کے ہیں، تو ان سے ملاقات کرنی چاہیے، یہ سوچ کر قریب جاتے ہیں، سلام پھرنے تک پھرتے ہیں۔ جب وہ سلام پھرتے ہیں، سلام پھرنے کے بعد جو ہے حضرت حبیب بن اسلم رائی رحمۃ اللہ تعالیٰ متاثرین میں سے ہیں آپ، تو جو ہے آپ کو وہ شخص جو دکھائی دیتا پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، میں جو ہے آپ کی زیارت، آپ سے ملاقات کے لیے آگے بڑھا ہوں، آپ سے بات چیت کے لیے، کیونکہ میں نے دیکھا اس لیے جو ہے میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ حضرت حبیب بن اسلم رائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جزاک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تجھے جو ہے
नेक तौफीक दे। अल्लाह तबारक व तआला तुझे इसका बेहतर सिला दे, जज़ा खैर दे तुझे, जज़ाकल्लाह फरमाते हैं। उसके बाद जो है वो जो सामने वाला था वो अल्लाह का बंदा हज़रत हबीब बिन असलम से पूछता है कि ये क्या बात है कि जो है आपकी बकरियां चल रही हैं और भेड़िया चरा रहा है, जो बकरियां खाने वाला है वो खुद बकरियां चरा रहा है, ये आपके अंदर कमाल कैसे पैदा हुआ, ये चीज आपके अंदर कैसा पैदा हुई? हज़रत हबीब बिन असलम राई रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं कि देखो बकरियां चराने वाला अल्लाह के जिम्मे हुआ है, और बकरियां इसलिए अल्लाह ने बकरियों को भेड़िए के हवाले फरमा दिया है, यानी जो खाने वाला है अल्लाह तबारक व तआला उसके हवाले फरमा दिया है। मैं खुदा की इबादत की हिफाजत कर रहा हूँ, मैं उसकी नमाज की हिफाजत कर रहा हूँ, मैं उसकी याद की हिफाजत कर रहा हूँ, मैं खुदा के याद की हिफाजत कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस भेड़ी के जरिए से मेरी बकरियों की हिफाजत फरमा रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला के वो नेक बंदे हज़रत हबीब बिन असलम राई रहमतुल्लाह तआला अलैह आप जो है फिर उसके बाद एक कटोरा रखते हैं, लकड़ी का कटोरा एक पत्थर के नीचे रखते हैं। पत्थर के नीचे रखने के बाद जो उस पत्थर से दूध भी निकलता है और शहद भी निकलता है। पत्थर से दूध और शहद निकलता है, वो देखकर और ताज्जुब करता है कि दूध और शहद जो है ये दूध और शहद, पत्थर से दूध और शहद निकल रहा है। तो उस वक्त जो है हज़रत हबीब बिन असलम राई आप फरमाते हैं कि देखो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमान थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमान थी। जब कौम ने मुतालबा किया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर जब लाठी मारी तो पत्थर से जो है 11 चश्मे निकले, 11 जो है नहरें जरी, 11 जो है पानी के चश्मे निकले। नाफरमानों के लिए अल्लाह पत्थर से पानी के चश्मे निकालता है, तो मैं तो हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। आप फरमाते हैं मैं तो हुजूर का उम्मती हूँ और मैं अल्लाह तबारक व तआला का फरमाबरदार हूँ, मैं नाफरमान नहीं हूँ। जब नाफरमानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला पत्थर से पानी अता करता है तो मैं अल्लाह का फरमाबरदार हूँ। अगर अल्लाह तबारक व तआला मुझे दूध और शहद अता करे तो इसमें क्या मुज़ायका है, फरमाते हैं। तो फिर उसके बाद वो बंदे खुदा फरमाते हैं कि मैंने जब वो दूध और शहद पिया तो जिंदगी में मैंने न वैसा दूध पिया था न वैसा मैं शहद पिया था, न वैसा शहद मैंने खाया था न वैसा दूध मैंने पिया था। तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन, इस बात से, इस वाक़े से बात मालूम होती है कि हमारे अंदर परहेज़गारी होनी चाहिए, हमारी ज़बान साफ होनी चाहिए। गाली गलौज, झूठ, ये जितने बुराइयां हैं हम अपने आप को उन बुराइयों से बचाने की कोशिश करें। हम जब तक बुराइयों से अपने आप को नहीं बचाएंगे, जब तक बुराइयों से दूर नहीं रहने की कोशिश करेंगे, देखिए आप, तब तक हम कामयाब जिंदगी नहीं गुजार सकते। कामयाब जिंदगी गुजारना है तो अपने आप को नेक बनाओ, अपने आप को अच्छे बनाओ, अच्छे बनकर जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। दुनिया वाले अच्छे कहें या न कहें, दुनिया वालों का ख्याल मत करो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक, हुजूर के नजदीक अच्छे होने की कोशिश करो। अल्लाह उसके रसूल के नजदीक अच्छे कब बनोगे? जब तुम शरीयत इस्लामिया पर अमल पैरा हो जाओगे, जब तुम अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पर चलने वाली बन जाओगे, जब अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पर आप चलने वाली बनोगे तो उस वक्त जो है आप अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक प्यारे बनेंगे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला आप पर खूब मेहरबान रहेगा। इसलिए आप अपनी जिंदगी को सुधार, अपनी जिंदगी में सुधार पैदा करें, आप नेक बनने की कोशिश करें, अच्छे बनकर जिंदगी गुजारा करें और नमाजों की पाबंदी करें। आप सुन्नी इज्तिमा में आप तमाम आए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है सुबह से लेकर तकरीबन जो है पंडाल ये जो है भरने तक जो है, सुबह से जो है तकरीबन 10, कोई 8, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, कोई 12, 1, 2, 3, 4 गरज है कि आप सुबह से इस जगह बैठे हुए हैं और सुबह से बैठकर आपने जो कुछ सुना है, आप ये अजीम शान सुन्नी इज्तिमा में आए हैं। पहले वो तुम्हें सबने सुनना है क्या नहीं है? तुम्हें बोलो है मां? अल्हम्दुलिल्लाह।
तबारक व तआला ने जब हम तमाम पर ये मेहरबानी फरमाई कि हम सुन्नी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात पर कायम व दायम हैं। और अहले सुन्नत व जमात सुनने बोले तो 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल की नहीं है। अहले सुन्नत व जमात बोले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से जो चले आ रहे हैं वही अहले सुन्नत व जमात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से जो चले आ रहे हैं वही अहले सुन्नत व जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम सही अकीदे पर कायम हो, और सही अकीदा वही है जिस अकीदे पर हमारे बाप दादा रहे हैं, जिस अकीदे पर बुजुर्गाने दीन रहे हैं, जो अकीदा आज से नहीं बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चला रहा है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चला रहा है, उस अकीदे पर आप हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है। लेकिन हमारे अंदर एक चीज़ की कमी है, हमारे जो है हमारे लोग नमाजों से बहुत दूर हैं, नमाजों से दूर हैं। आप नमाजों के करीब आइए। जितने लोग हैं वो नमाज ही दिखाकर जो है आपको आहिस्ता से बुलाने की छोड़ कर जाते क्या नहीं जाते। अब तीवर बात नहीं, अपने बातों में बोलते मैं चलता तुम ना तुम्हें अगर तुम्हें अगर नमाज पढ़ने वाले हुए तो कई चीजों से तुम्हें बचती, बहुत सारी चीजों से तुम्हें बचती। और हमारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी के साथ दरगाह को जाते क्या नहीं जाते, अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं। और दरगाह को जाना सही है, गलत नहीं है। दरगाह को जाना फातिहा दिलाना ये जो है गलत नहीं है। हमारे अक्सर माँ बहनें अपने घरों में जुमेरात की दिन फातिहा दिलाती हैं, दिलाती या नहीं दिलाती? अल्हम्दुलिल्लाह आप दिलाते हैं, ये बहुत बरकत की बात, ये बहुत बरकत की बात। इस चीज पर आप तमाम कायम व दायम रहो, इस चीज पर कायम व दायम रहो। आजकल भोजन निकले फातिहा नहीं दिलाना शिर्क बताकर बोलती है, फातिहा नहीं दिलाना, फातिहा नहीं तो शिर्क बता करते, चिराग नहीं लगाना, चिराग लगे तो फजूल बता कर बोलते, चिराग लगे तो फजूल खर्ची है, ये चिराग नहीं लगाना फजूल खर्ची हो। सालन बनाते टाइम में 2-2 किलो तेल डाले चलता क्या माँ? सालन बनाते टाइम में गुड़गे कुलचा तेल डाले चलता। चिराग के वास्ते 5 रुपए का तेल लगेगा, बोले ऐसा होता वो चिराग वहां नहीं, उनके हल्लत में जलते होता। कैसा तो लोगों को गुमराह करते हैं, देखो तुम्हें नहीं मां। घरा में उपीट बनेगा तो पानी है तो तेल आते रहता उसमें से, चपातियां बने तो भी वैसा, वो बाद में दाल बने तो भी वैसा, बिरयानी बने तो भी वैसा। तेल बस ने आगे भी डाल डालते ऊपर से, अभी तो चिकना हो देते रहते, तेल बस ने आगे भी डाल डालते, वो फजूल नहीं होता। वहाँ जो है वो खाना बनाते टाइम में, दाल बनाते टाइम में वहाँ आधा किलो तेल वैसा चलते हैं, वहाँ फजूल नहीं। हमारे माँ बाना जरा चिराग लगेंगे, गोश्त के नाम से चिराग लगेंगे फिर कर तो वो फजूल है, वो शिर्क है। वो शिर्क किसे बोलते हैं? अल्लाह के बराबर करने को शिर्क बोलते हैं। तुम्हें इतने जने हैं माँ, कौन भी चिराग को अल्लाह कर बोली क्या? आज तक बोली क्या? नहीं बोलती, कोई भी नहीं बोलती उसे। ये नहीं, ये शिर्क है, ये बिद्दत है। उनके घरा में उनके 3 जोड़े कपड़े में तो बस है, 4 जोड़े में तो बस है, 15-15 20-20 जोड़ रखे हैं, कटिंग कराए थे वहाँ जो है फजूल खर्ची नहीं दिखती, वहाँ फजूल खर्ची नहीं। जरा फातिहा आएगा तो फजूल खर्ची हो, वो भी करते हैं, वो नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। ये
और उनके बातें इतने दिखते हैं, उन्होंने भौतिक पढ़ी लिखी है कि उनको भौतिक मालूम है क्या कि, लेकिन जब शरीयत के उसूल पूछो, उसूल क्या क्या भी नहीं मालूम होते हैं। उन्होंने जो है जो बोले रहती हैं वो दिमाग में बैठा लेके रहते हैं। ए नहीं, घर में खत्म नहीं दिलाना, फातह नहीं दिलाना, फातह दिले कर बोले तो वो बिद्दत है वो गति ऐसा जरा ज्यादा कुछ नहीं, हमने बता नहीं मालूम ना, खाली हमने कहता बोली होता से मालूम। तुमना को नहीं दिलाना कर बोलने वाले अब पैदा हुए उन्हों, फातह नहीं दिलाना कर बोलने वाले कब पैदा हुए? अब पैदा है। फातह दिलाना कर बोलने वाले कब से हैं कि तुमना को नहीं मालूम, हमना को नहीं मालूम। बाप दादा कितने खानदान पीछे से हमारे दिलाते आ रहे हैं। ये गरीब नवाज जब से हैं तब से हिंदुस्तान में फातह हैं क्या नहीं? 800 साल से जो है गरीब नवाज हैं, तो तब से फातह हैं। ये फातह नको दिलाओ, वो नको करो, ये नको करो। अब बोलते हो ना कि नमाज के, अब तुम्हें नमाज के बारे में सुनी क्या नहीं सुनी? सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह सुनी, नमाज के बारे में सुनी। और मैं भी शुरू में आपको वही बोला, नमाज की पाबंदी करो। नमाज की पाबंदी जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको दिखाने वाले ये दिखाएंगे कि जो है तुम्हें नमाज नहीं पढ़ते, ये सब करते तो मैं नमाज ही नहीं पढ़ते, क्या फायदा अगर हमारे क्या करते माँ बहना? सही बोल रहे हैं आप, बहुत सही बोल रहे हैं। हमें नमाज नहीं पढ़ रहे, सब ये कर रहे हैं, क्या फायदा? वही भाई सब ये छोड़ को नमाज पढ़ो बोलो को कहीं बोल रहे हो, ये सब छोड़ को नमाज को, वो सब करते हुए नमाज पढ़ो कर बोल रहा हूँ। उन्होंने क्या बोला था? फातह दिलाते हुए नमाज पढ़ो, हाँ ये नेक काम करते हुए पढ़ोगे ना, लेकिन नहीं 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 वो नहीं करना, वो नहीं करना। खाली जो है तुम्हें जो है नमाज, बेशक नमाज पढ़ना है, लेकिन उससे क्या करते हैं? आहिस्ता 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 तुम्हारे अंदर से अदब एहतराम खत्म कर देते। आहिस्ता आहिस्ता अदब एहतराम खत्म हो जाता। ये जितने लोग हैं देखो, कभी जो है माँ के सामने नहीं झुकते ना, कभी नहीं झुकते माँ के सामने, बाप के सामने कभी नहीं झुकते। माँ बाप के जो है कदम चूमो बोले तो उन्होंने क्या बोलते हैं? नहीं 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 नहीं, इनको अदब एहतराम मालूम ही नहीं है। इनको अदब एहतराम मालूम ही नहीं कि जो है अदब एहतराम जो है, अगर कोई माँ बाप के जो है कदम बोसा दिए जो है चूमे, तो जो है फौरन बोल रहे हैं शिरक होगा, शिरक हो गया, हो गया। पैसे लेते इस टाइम में नीचे पड़े पैसे का बोले तो क्या थूक को लेते क्या? पैसे पड़े तो कितना कितना इसकी उठा लेते हैं? ए जान छोड़ क्या पड़े फिर वहां छोड़ी निकल जाओ तो तुम्हें कहाँ भी तरकारी लेने का तुम्हारे क्या बोलते हैं इसे मडगी फल्या में पैसे पड़े तो पूरी मडगी फल्या सरकाते हैं। वो नीचे नहीं सकना, पाँव में नहीं सकना, अल्लाह की नेमत हो, अल्लाह की नेमत हो, पैसे पैर में नहीं रखना, हाँ उठा के जो है जेब में रख लेते हैं। अपने आप को नेक बनाओ, इबादत करो। आप जितना पढ़ना है आप दुनियावी उलूम पढ़िए। आप अगर कॉलेज में पढ़ते हैं बिल्कुल पढ़िए, आपको शरीर बिल्कुल इजाजत देती है, आप इल्म हासिल कीजिए। आप स्कूल में पढ़ते हैं बिल्कुल पढ़िए आप, लेकिन कुछ तवज्जो आप दीन की तरफ भी कीजिए। आप
अपने आप कुछ मसाइल भी आप सीखिए, कुछ बातें भी आप सीखिए। दीन पर चलना आपके अंदर पैदा हो जाए, दीनदारी आपके अंदर पैदा हो जाए। जब तक दीनदारी नहीं पैदा होगी सब बेकार है। आपके अंदर दीनदारी हो, देखो असल पर्दा आंखों का पर्दा है। आपके अंदर शर्मो हया हो, आपके अंदर पाकीज़गी हो, और इस पाकीज़गी को अल्लाह तबारक व तआला बहुत पसंद फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला पाकीज़ा को पसंद फरमाता है। जब तक आपके अंदर पाकीज़गी नहीं आती तब तक आप कामयाब नहीं कहला सकते। इसलिए आप अपने घरों को पाक साफ रखो, घर को पाक साफ रखना। घरों में जो है वैसे ही गंदगी नहीं छोड़ना, उससे रहमत के फरिश्ते नहीं आते। घरों में अगर आप सूरज निकलने तक सोए रहेंगे तो आपके घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। रहमत के फरिश्ते दहलीज तक आते हैं, और जब देखते हैं कि कोई जो है जुनूबी सोया हुआ है, हाँ, या जो है वैसे ही खुदा के नाफरमान है, तो अल्लाह के फरिश्ते हट जाते हैं वहां से। इसलिए आप उठो, उठकर सुबह के वक्त सर्दी बर्दाश्त करो, लेकिन नमाज़ें पाबंदी के साथ अदा करो। अगर आपकी हालत है नमाज पढ़ने की तो हरगिज़ नमाज मत छोड़ो। नमाज किसी भी हालत में मत छोड़ो, आप नमाज पढ़ने की कोशिश करो। बाकी की हालत हो तो आप मसरूफ हो, आप जो है थके हुए हो, कुछ भी हो, पहले नमाज पढ़ो, पहले नमाज पढ़ो, उसके बाद दूसरे काम करो। अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी वो नेकी और आपकी वो अच्छाई आपकी औलाद को अता फरमाएगा। अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी वो बरकत आपके घर में अता फरमाएगा। अगर आप नमाज पढ़ने वाली हो जाते हैं तो आप जाहिर सी बात है आप वजू से रहने वाली हो जाएंगे। अगर आप वजू से खाना बनाते हैं, जो वजू से खाना बनाते हैं आप, अगर किसी के अंदर वो लुकमा चले जाता है और जो वजू से खाना बनाया जाए और उस लुकमे को अपने पेट में उतारे, तो जाहिर सी बात है पाक खाना इंसान के अंदर पाकी पैदा करता है। पाक खाना पाकी पैदा करता है। अरे अल्लाह वालों की माएँ तो ऐसी थी, जब वो खाना बनाती उस वक्त भी वो कुरान पाक की तिलावत करती रहती थी, उस वक्त भी कुरान पाक पढ़ती रहती थी। आपको अगर बिस्मिल्लाह आता है तो आप बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना बनाना शुरू करें। देखिए बहुत आसान है, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना बनाना शुरू करो। आप बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना बनाओगी तो अल्लाह तबारक रखेगा, ऐसी बरकत रखेगा कि वो खाना जो भी खाए अल्लाह तबारक व तआला की याद उसके अंदर पैदा हो जाएगी। उस खाने का असर जो है नेकी के साथ होगा। उस खाने से जो ताकत पैदा होगी वो बुराई की तरफ आपको नहीं ले जाएगी। इसलिए जब आप घर में खाना खाओ उस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाओ। जब भी कुछ खाओ आप अपनी आदत बना लो कि आप जब भी कुछ खाएंगे बिस्मिल्लाह पढ़ के आप खाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान कलाम मजीद खोलो, सबसे पहले जो चीज आपको नजर आएगी वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। आप बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाने वाली, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना बनाने वाली हो जाओ। आप अगर आप वजू से खाना बनाते हैं तो उसका असर सारे घर वालों पर होगा। अगर आप फजूल नहीं करते हैं, यानी बहुत सारी माँ बहनें ऐसी होती हैं जो खाना ज्यादा बनाकर फेंक देते हैं, सड़ाते हैं। नहीं, पहले के भी दौर में था कि खाना अगर रात का ज्यादा बच जाता सुबह बगाड़ कर खाते थे। सुबह जो है उसे मिर्ची नमक तेल डालकर जो है बगाड़ कर खाना खाते थे। लेकिन आज जो है अगर बचा हुआ है तो फेंक रखते हैं, सड़ने तक खाना रखते हैं। ये सड़ने तक खाना, अक्सर लोगों का हाल वैसा ही है। इसलिए जो अपनी आदत को बदलें, अपनी आदत को बदलकर खाने की ताज़ीम व तौकीर करें, खाने की इज्जत करें, खाने का एहतराम करें। जब तक आप खाने का एहतराम नहीं करेंगे, देखो खाना आपको बहुत मिलेगा लेकिन उसके बदले जो है कब्र में और हशर में अज़ाब भुगतना पड़ेगा अगर आप खाने की ताज़ीम नहीं करेंगे। इसलिए आप अपने आप को नेक बनाओ, अपने घर का माहौल अच्छा करो। घर का माहौल अगर आपका अच्छा हो गया तो यूं समझो आपका उसके बाद जितनी आपकी नस्लें आएंगी उस आदत को देखते हुए अपनी भी आदत जो है सुधार लेने और उसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करते रहेंगे। इसलिए जो है आप नमाज पढ़ते हैं, तुम्हें समझे ना, नमाज की पाबंदी करते हैं, तुम्हें नमाज की पाबंदी करो।
अपने बच्चों को नमाज के लिए उठा, अपनी बच्चियों को नमाज के लिए उठा और खुद नमाज के लिए तैयार हो जाए। अगर हालत नहीं है तब भी आप वजू करो, वजू करके खुदा को याद करते हुए बैठ जाओ, ताकि नमाज की आदत आपके अंदर बाकी रहे। जब नमाज का वक्त हो जाए तो आप वजू बनाओ, वजू बनाकर आप जो है बैठकर कुछ देर तक तस्बीह तहलील करो, कुछ देर तक अल्लाह अल्लाह करवाओ, ताकि आपकी नमाज के वक्त की आदत बाकी रहे। आपकी इस चीज की पाबंदी करो और आप पाक साफ रहने की कोशिश करो, अपने आदत और अखलाक को पाक साफ रखो। आज माहौल बहुत खराब है, आज जो है माहौल बहुत खराब है। इस खराब माहौल में अपने आप को अच्छे बनाने की कोशिश करो। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कोई किसी दूसरे के देखने और पूछने की जरूरत नहीं, बल्कि आप ये सोचो कि मैं जो कुछ कर रही हूँ अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख रहा है, अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख रहा है। इस बात का यकीन पैदा करो। अगर तुम्हारे अंदर ये यकीन पैदा हो गया तो किसी गुनाह की तरफ आपका कदम नहीं उठेगा, आपका कदम किसी गुनाह की तरफ नहीं उठेगा। अगर गुनाह का वक्त आ जाए बिल्कुल आप अपने आप को ये ख्याल करते हुए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख रहा है, गुनाह नहीं करना है, बुरा काम नहीं करना है, आप अपने आप को बचाने वाली हो जाए, आप अपने बच्चों की हिफाजत करने वाले हो जाएंगे। इस वास्ते कि माँ बहुत अहम है, माँ बहुत अहम, बहन बहुत अहम, बीवी बहुत अहम। माँ औरत, बहन भी औरत, बीवी औरत, अल्लाह तबारक व तआला ने हर एतबार से औरत को इस्लाम में बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया है। इस्लाम ने औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ा मर्तबा मकाम अता है, उनकी बहुत ज्यादा ताज़ीम, तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत है एहतराम। अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कितनी बड़ी बात है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, यानी तुम माँ को खुश करो। अगर तुम माँ को खुश करती हो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। तुम अपनी माँ को खुश करो, माँ तुम्हारे लिए जन्नत है। और अल्लाह के भी फरमाते हैं बाप जन्नत का दरवाजा है, करीम करो, उनकी इज्जत करो, उनका एहतराम करो, हरगिज़ 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 माँ बाप की नाफरमानी मत करो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरमा, कि माँ बाप को तुम उफ़ मत बोलो, ऐसा कलिमा, ऐसा जुमला मत बोलो जिससे माँ बाप की तुम लेवा मुझे जान छोड़ो, हमारे पता नहीं बोलते रंग लेवा जा तू तेरा काम कर, मुझे मालूम है, ये बहुत बुरी बात है। अल्लाह तबारक व तआला इससे नाराज होता है। इसलिए अपने आप को अच्छे बनाने की कोशिश करो, नेक बनाओ, अच्छे आदत और अखलाक से अपने आप को संवारो, सुधारो, अपने आप को अच्छे बनाओ, अपने घरों को पाक साफ रखो और इस्लामी माहौल में जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। दुनिया आएगी चली जाएगी, उम्र ढलते 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 बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाते, कोई इस दुनिया में जवान नहीं रहे। हर एक की जवानी यहाँ खत्म होने वाली, बचपना खत्म होगा, जवानी खत्म होगी, बुढ़ापे की उम्र को पहुंचना ही पहुंचना है, फिर उसके बाद कब्र में जाना ही जाना है। यहाँ कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आए, यहाँ कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आए। इस दुनिया को छोड़ना ही छोड़ना है, किसी भी हालत में छोड़ो, बचपने में छोड़ो, जवानी में छोड़ो, बुढ़ापे में छोड़ो, किसी भी उम्र में छोड़ो, बहरहाल इस दुनिया को छोड़ना ही छोड़ना है। जब इस दुनिया को छोड़ना है तो ये सोचो हमें जाना कहाँ है। इस दुनिया को छोड़ने के बाद हमें खुदा के पास जाना है, अल्लाह के पास जाना है और वहां हमेशा रहना है। इसलिए वहां की तैयारी करने की कोशिश करो, इसलिए वहां के वास्ते तुम सुधर कर अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। दीन इस्लाम पर कायम व दायम रहो। अल्लाह ने जो हमें दीन अता फरमाया है ये बहुत आला दीन, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है बेशक अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक पसंदीदा दीन इस्लाम ही है। इसलिए आप इस पर मजबूती के साथ कायम रहो। इस्लाम के कितने अरकान हैं? कितने हैं? 5 है 4 है? 4 बोले तो बोल कितने हैं? 5। सबको मालूम है क्या? कलमा पढ़ना, दूसरा बोले तो 5 दुनिया, कलमा, उसके बाद नमाज, उसके बाद रोजा, उसके बाद ज़कात, उसके बाद हज। अब तुम लोग नमाज आने पढ़ते, उम्र जाने की तैयारी करते हो,
उनको हालिना में बोले तो बस बता नहीं अच्छे में रहते हैं तुम्हें उम्र जाना शुरू क्या दी तुम्हें उम्र जाओ नहीं जाना कर बोल नहीं, लेकिन जो है सुधरने की पहले कोशिश करना। उम्र को जाओ बहुत अच्छा, लेकिन अपने आप को सुधारने की कोशिश करना। देखो अब बहुत सारे जने हैं पैसे नहीं रहते उम्र जाने का स्टेप नहीं रहते नहीं माँ बहुत जने के पास नहीं रहते हज जाने का। अल्लाह के नबी क्या फरमाते तू अपने माँ बाप के चेहरे को अगर खुशी से देखते हो तो वो तेरे वास्ते हज मकबूल का सवाब है। हज का सवाब माँ बाप के चेहरे को देखना क्या किसका सवाब है? हज का सवाब। हज जाने के जो सवाब माँ बाप के चेहरे को खुशी के साथ माँ बाप के चेहरे को अगर देखोगे तो तुम्हें एक हज का सवाब कबूल होने मकबूल हज यानी ऐसा हज जो अल्लाह की बारगाह में कबूल है, मकबूल हज का सवाब तुम्हें मिलता है। तो इसलिए जो है कोशिश करो आप तमाम जो है नेक बनो, माँ बाप की इज्जत करो, हाँ? और घर में एक अच्छा दीनी माहौल अपने अंदर पैदा करो। और सबसे पहले मैं तुम ना एक ही बात मेरी याद रखो, सुन्नी बन करो ना तुम्हें क्या बन करो ना माँ सुन्नी अहले सुन्नत व जमा अहले सुन्नत व जमा सब बाद में पैदा हुए। बागलकोट में मलकुर रहमान पहले से हैं, बागलकोट में शहशाह वली पहले से हैं, नको जाओ नको करो करने वाले बाद में पैदा हुए। शहशाह वली पहले से हैं, मलिकुर रहमान बागलकोट में पहले से हैं, हाँ ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज पहले से हैं। इसलिए जो है ये जो हम फातिहा वगैरह दिलाते हैं बिल्कुल सही और दुरुस्त है। जब जने रहते हैं फातिहा दिले तो चलो देखा नहीं करते हैं क्या नहीं माँ ज्यादा दिले यासी वासी कर को लाती तो भवा अंदर ऐसा काड़ी फिकर को लगा छोड़ती है कला चुरचुर बत्ती लगी गई तुमको लगते 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 तुम लोग में 8 बजे तक छोड़े। आजकल क्या करोगे तो हमारे माँ बहना बहुत भूले, देखो उसमें सुनने आएंगे तो अभी भूले क्या नहीं कर नमाज पढ़ते हैं कुरान पढ़ना का नहीं बस करते हैं। उन्हें अंदर आने के बाद क्या करते हैं उन्हें जो है सबसे पहले ये नहीं होना वो नहीं होना। उन्हें माहौल देखती हूँ घर का टाइट रहेगा तो क्यों है हम जो बोले जाते हैं बोलते हैं क्यों है भगा ले जाओ तुम। मैं हमारे जबान में बोलूँ जरा टाइट दिखी साथ जरा टाइट दिखी बच्चे रोड को भर जो है चिराग लगाना नमाज पढ़ना चिराग लगाना करोगे तो वो होते हैं। 10 दिन तक माहौल देखते है घर में कौन कमजोर है पहले देखते हैं, उसके साइड कौन लेती देखती है। हाँ फिर हमारे ससुरे को झूले में डालने को काम बनता है। अब्बा हो अब्बा हो इन्हें अब्बा सुने समझता हो बाबा सुने आता जिंदगी भर को अब्बा हो कहते हैं और अम्मा कहते हमारे पास है अम्मी हो कहते हैं अम्मी जी के खिलाफ हो अभी वहां खिलाफ अम्मी जी कर बोले तो क्या कहते उसे बालू शब्द दे दे हाथ में अम्मी जी का मजे अम्मी जी के भाऊ तो क्या करती हो सही माँ हमें क्या हमें अनपढ़ है हमने मालूम ही नहीं क्या भी नकुल नहीं अम्मी जी ये समय नहीं रखना घर में ये दिक्कत है ये उनके दादा समय रखो सुनो पैदा वेर खुला अब जो है सब बिसरे थे बच्चे तो बोलते नहीं वो नवे सौगार हम सब बिसरे जाता कहते तो पैसा दबा के एक बात नहीं वैसा हो मुझे अब सीखने के बाद में ओ तो अम्मी जी बोले तो इन्हें भी खुश या सास बहुत सही थे तो क्या करती है अब्बा जी कहती माँ। हाँ 2 जगह में से एक जगह तो काम बनता है वहाँ दोनों जगह नहीं बना तो नरक पकड़ते हैं अब नमक मालूम से वो तो क्या करते हैं अम्मा तो नहीं पड़ी क्या भी उन्हें बहुत परेशानी होना क्यों बोले हम चल एक जग छोड़ तो
उन्हें क्यों बोले हम चल ले जाना, तेरा बड़ा बटा बटा लगे, तू क्या है? उन्हें क्यों बोले हम चल ले जाता, तू पढ़ी लिखी क्या कर डरा लेते? इन्हें क्या है, नहीं छोड़ो, मैं पढ़ी लिखी में क्या नहीं, क्या करना? हाँ जा रहे, क्या कहते हो, 3 दिन साथ में मस्तूरा था क्या? ऐसा घर को पूरा घर क्या है, पहले वहाँ उदबत्तियां की खुशबू आती थी, बाद में क्या है वहाँ बदबू चालू हो चुकी वहाँ। कहीं वो उदबत्तियां लगे तो जो है 2 ऊँट के कारण 2 नाक में रखे अल्हम्दुलिल्लाह जो है खुशबू रनामा घर में, उदबत्तियां उद्दार लगे तो फरिश्ते आते हैं। उदबत्तियां उद्दार लगे तो क्या होता है, उससे खुशबू से क्या होती, ईमान वाले के पास खुशबू से क्या होती, फरिश्ते आते हैं। खुशबू कहाँ की हो, खुशबू कहाँ की हो, सरगम के समझेगा तुम्हें, खुशबू कहाँ से हो, जन्नत से खुशबू। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुशबू क्या है, जन्नत से आई है। इसलिए हदीस है, खुशबू कौन भी दिए तो इनकार मत करो, खुशबू कौन भी दिए तो इनकार मत, लगा तो करो, बोले तो हाँ हम दे करो, नहीं लगा, लेकिन औरतां के रास्ते नहीं, औरतां के रास्ते नई खुशबू इस्तेमाल करना, ज्यादा दूर दूर तक गए जैसी खुशबू औरतों के रास्ते जायज नहीं। औरतों के रास्ते हल्की खुशबू, हल्की खुद के वास्ते महसूस हुई हो वैसी खुशबू। अब जो है वो दूध बच्चा लगे तो भी ये उद्यान में दूध डाले तो भी मुश्किल है। अब ऐसा करके पूछो ना बेटे, लेकिन जो है इसके वास्ते जब लंबा टाइम चला तुम्हें फिर जो है इस्तेमाल करो भी हुआ तो मैं जरूर बोलता हूँ इसके बारे में, लेकिन तुम्हें जो करने देखो बिल्कुल सही और दुरुस्त है। तुम्हारे अंदर एक चीज नहीं, वो क्या है, नमाज नहीं पढ़ो। ये सब करते हुए नमाज पढ़ो तो जो है तुम्हारा सब अल्लाह तबारक व तआला कबूल भी फरमाता और खुश भी होता, क्योंकि तुम्हारे अंदर अदब एहतराम आता, तुम्हारे अंदर जो है अदब एहतराम आता और एक सुकून पैदा होता। उदबत्तियां सुनिए तो रोना आता कि खुशी होती, खुशबू सुनिए तो इंसान को खुशी होती, शैतान को जो है तकलीफ होती उससे। शैतान को क्या होती, तकलीफ होती उससे। खुशबू लगाओ तो क्या कर रहे हो, हमारे पास जुमेरात को फातिहा दिलाती है, जुमेरात को फातिहा, इससे पहले बोलूं मैं, हर जुमेरात को फातिहा दिलाओ, ये आदत डाल लो, इस वास्ते कि तुम्हारे जुमेरात तक के जो काम होते हैं, तुम्हारे आमाल होते हैं, जुमेरात के दिन तुम्हारे सारे आमाल जो है फरिश्ते ले जाकर हुजूर के सामने पेश करते हैं। हुजूर के सामने जो है जुमेरात के दिन तुम्हारे सारे आमाल पेश होते हैं, फरिश्ते दिखाते रहते हैं, या रसूल अल्लाह आपका उम्मती, आपके जो है उम्मती जो है ये की, इसने ये की, उसमें जो है सारी नेकियां हुजूर के सामने पेश होती। अल्लाह तबारक व तआला मुकर्रर करे फरिश्तों को, वो फरिश्ते ले जाकर हुजूर के सामने रखते तुम्हारी नेकियां। इसलिए जुमेरात के दिन तुम्हें फातिहा दिला, कैसे पहले जो है फातिहा दिलाते थे, जुमेरात दिलाते थे कि नहीं दिलाते थे? घर के बाहर शक्कर बांटते थे, शक्कर फुटाने, वो ये जलेबी क्या क्या तो बांटते थे। अब इनको खे तक बस नहीं आ रहा, इनको खे तक बस नहीं आ रहा, जलेबी क्या बांटेंगे, शक्कर क्या बांटेंगे, पेड़े क्या बांटेंगे। अब जो है पैसे जेब में बहुत हैं लेकिन कंजूस बहुत नहीं है। पहले कम पैसे रहते थे, लोगों को खिलाना पसंद करते थे, अब जो है पैसे बहुत हैं लेकिन कंजूसी ज्यादा है। इसलिए जो है तुम्हें सब जगह सही तौर पर जो है तुम्हें जिस चीज पर कायम है, अहले सुन्नत व जमात, इस पर तुम्हें हमेशा के वास्ते कायम हो जाएंगे रहना है। हरगिज जो है भटकना नहीं तुम्हें, मतलब क्योंकि जो चीजें हैं वो सब सही है, सब दुरुस्त है, जो चीजें हैं वो सब दुरुस्त, सब सही है। ये जो बोला जाता है क्या आलिमा जो है बताएगा आपको, फिर जब इज्तिमा होगा तब आपको जो है बताया करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। रमजान के बाद जो है औरतों के इज्तिमा करना है, तुम्हें तुम्हारे एरिया में साथ देते, तुम्हें सब जगह साथ देना है इंशाअल्लाह। जो है रमजान मुबारक के बाद जो है एक तरीके से जो है हर एक गांव में जो है, या छोटे छोटे हैं तो 2-3 गाँव को मिलाकर जो है हर 15 दिन में एक मरतबा जो है एक इज्तिमा, वहाँ लेडीज ही रहती है, लेडीज को लेडीज ही बोलते हैं, वहाँ वैसा जो है जैसा अब हुआ बात जगह हुआ वैसा हर 15 दिन में एक मरतबा इज्तिमा जो है रखने का इरादा है। लिहाजा जो है आप रमजान मुबारक के बाद बहुत सारी चीजें सीखना,
बहुत सारी चीजें सीखने की कोशिश करना, कोशिश करके जो है आप सीखो, आप इल्म हासिल करो। हाँ, इल्म भी किसके पास हासिल करना है? जहाँ तुम्हारा ईमान नहीं खराब होता वहां से हासिल करो तुम्हें इल्म। भी कहा भी तुम्हारा कल क्या बोलते हैं इसमें, थैली में बंद कर लिख जाना में पास जो है इल्म को हासिल करो। जहाँ तुम्हारा ईमान बचता वहां से तुम्हें इल्म हासिल करो, कोशिश करो, मेहनत करो। अल्लाह तबारक व तआला आपको जो है अच्छा करे। माशाअल्लाह जो है ये इज्तिमा औरतों के वास्ते, क्योंकि जो है मर्द हजरात के वास्ते इज्तिमा रहता था, तो एक दिन पहले मर्दों के वास्ते जैसे जरूरत है औरतों के वास्ते भी जरूरत है बोल के जो है माशाअल्लाह पिछले जो है 2 सालों से जो है ये सिलसिला जारी व सारी है। आप तमाम जो है शुरू से रहे, अच्छा लगा तो मैं एक दीनी माहौल मिला आपको अल्हम्दुलिल्लाह। एक दीनी माहौल में आप उठे बैठे, ये बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। आप जो है इसी तरह दीनी माहौल में जो है आप उठना बैठना करें, लेकिन दीनी माहौल बोले तो जो है सीधा सीधा नंबर ने तो गाड़ी में बैठने की कोशिश न करो। हाँ, तुम्हें जो है सही जो ईमान अकीदे वाले हैं वहाँ जो है आप बैठो, सीखने की कोशिश करो, इल्म हासिल करो, सूर्य याद करो। सबके वास्ते इंशाल्लाह रमजान के बाद जो है कोशिश शुरू होने वाली है, तो ना को जो है सीखने के वास्ते, मसाइल के वास्ते, बहुत सारी बातों के वास्ते, वो जायज ये नाजायज, सही क्या है गलत क्या है, जायज है नहीं जायज है, सारी बातें इंशाल्लाह इसके बारे में बताने के वास्ते जो है इज्तिमा हमें शुरू कर रहे हैं। नमाजों की पाबंदी के वास्ते जो है इज्तिमा शुरू करें। माशाल्लाह जो है पिछले 1 महीने से जो है लगातार जो है इज्तिमा हो रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से इज्तिमा हो रहे हैं। जहाँ जहाँ इज्तिमा हो रहे हैं, लेडीज इज्तिमा जहाँ जहाँ हो रहे हैं, सब खुश हैं। तो इंशाल्लाह रमजान के बाद आप जिस जिस गाँव वाले हैं, जहाँ जहाँ जरूरत है, अगर आप बोलकर भेजेंगे तो जरूर जो है वहाँ इज्तिमा के वास्ते आलिमा पर भेजने की जरूर इंशाल्लाह तबारक व तआला कोशिश की जाएगी। आप तमाम को इज्तिमा में आना बहुत बहुत मुबारक हो, और आप तमाम जो है अपने आप को अच्छी तरीके से जिंदगी इस्लामी तौर तरीके से रहकर जिंदगी गुजारने वाले बनाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला तबारक व तआला आप तमाम को बरकत रहमतें अता फरमा, इलाही में तमाम की हाजिर फरमा, सबकी रोजी अता फरमा, इरादों में कामयाबी अता फरमा, जिनकी जो परेशानियां हों उसे दूर फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मौला तबारक व तआला तमाम को अकीदे अहले सुन्नत व जमात पर कायम व दायम फरमा। इलाही मौला तबारक व तआला हम तमाम को नमाज से पंजगाना अदा करने की तौफीक अता फरमा। सुस्ती काहिली गफलत से बचा, हर एक बुराई से बचा, हर एक गुनाह से बचा। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम के घरों में इत्मीनान, चैन, सुकून और बरकत अता फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं इसी के साथ दुआ होगी, आप तमाम जो है खुसूसी दुआ में शरीक हो, दुआ करेंगे। दुआ के बाद जो है फिर वो हट जाएंगे, उसके बाद मुख्तसर सलात सलाम होगा। मुख्तसर सलात सलाम के साथ जो है आज का ये अज़ीम शान दीनी तरबियती सुन्नी इज्तिमा जो औरतों के लिए जिसका इनेकाद था, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी इख्तितामी मंजिल को इंशाअल्लाह पहुंच जाएगा। तो उसी के साथ जो अब दुआ हो, उसके बाद एक जरूर ऐलान ये भी सुनिए, आप यहाँ से जाते हो आराम सुकून से जाइए, और खाना अल्हम्दुलिल्लाह सारों के लिए खाना है, आप खाना खाकर जाइए। वो जो है तबर्रुक होता है, उसमें बरकत होती है, अल्लाह तबारक व तआला जो है उसके जरिए से बरकत अता फरमाता है। इसलिए क्योंकि जो है वो किसका है मालूम है कि नहीं तुमने, वो गौस पाक का लंगर है, वो किसका है, हमारा गौस पाक का लंगर है। इस वास्ते जो है उसमें जरूर आप जो है नियत करके खा के जाओ कि या अल्लाह जो हम नेक जगह हैं तो हमारे खाने को कबूल फरमा, हमें नेक बना बोल के आप जो है जरूर खाना वगैरह खा के सुकून के साथ जो है आप इज्तिमा गाह से आप तशरीफ ले जाएं। उसके अब दुआ होगी, दुआ के बाद जो है फिर सलातो सलाम होगा। सलातो सलाम के बाद जो है आज का ये इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ अपनी मंजिल को पहुंच जाएगा। तुम्हें एक जो नमाज पढ़ते तुम्हें समझ में, हाँ अहले सुन्नत व जमात पर कायम व दायम रखते तुम्हें इंशाअल्लाह जरूर की जरूर कायम रहो। माँ बाप, हमारे बाप दादा, परदादा, परनानी, बाद में जो है लक्कड़ दादा, शक्कर दादा, लक्कड़ नानी, सब जितने पीछे हैं सब जितने सुनने तुम्हें टेंशन बदलने की कोशिश नहीं करना, तुम्हें टेंशन बदलने की कोशिश नहीं करना।
चार्जर का गड्ढा जहाँ लगाना वहां से लगाना, करंट नहीं आती जगह तुम्हें चार्जर का गड्ढा नहीं लगाना। याद रखो, अल्लाह अच्छा रखेगा, दुआ हो जाए। मैं अपने अम्मा और बहनों से इल्तिमास करता हूँ, कोई शोर गुल, कोई आवाज़ और पुकार ना होगा, बल्कि ये पहला इज्तिमा ख़वातीन का सुबह से लेकर अब तक जो मुनक्किद किया गया। हेलो, तमाम लोगों की गुजारिश है कि अपने अपनी जगह पर बैठ जाए, दुआ हो रही है, आमीन बोले, बैठ जाए सारे लोग। बैठ जाइए मेरी माँ बहनें, दुआ यकीनन इबादत का मर्ज़ है। आखिर में आपको कुछ लेकर जाना है तो उम्मीद करता हूँ कोई भी माँ और बहनें नहीं जाएंगे। आप मुरादे लेकर के आइए, तमन्ना लेकर। कुछ आपकी मुसीबतें हैं, कुछ आपकी हाजतें हैं, कोई बीमार है, कोई मर्द भी, कोई माँ बीमार होगी, किसी का बच्चा होगा, किसी की बच्ची का रिश्ता नहीं होता होगा। मेरी माँ और बहनें, यकीन माने दुआओं से हर मुश्किलें टल जाती है, दुआओं से कोई जोड़ा को जोड़ा मिलता है, दुआओं से अमराज की शिफा मिलती है। तो लिहाजा मेरी माँ और बहनें, इतने हज़ारों के तादाद में ख़वातीन जमा हो चुकी है। मैं ख़वातीन इस्लाम से, मेरी माँ और बहनें, मैं आपसे इल्तिमास खुसूसी तौर पर गुजारिश करता हूँ, कोई आवाज़ नहीं है, बल्कि आप जिक्र करते हैं। याद रखिए, अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन और सुकून है। जहाँ दिल बेकरार है तो बंदों को चाहिए कि ऐसे अल्लाह का जिक्र करके सुकून हासिल करें। आइए दस्तूर से मेरी माँ और बहनें गर्दनों को खम कर ले, सरों को झुका ले, सरों को झुका ले, कोई आवाज़ ना करे। अब अल्लाह का जिक्र होने जा रहा है। सरों को झुकाकर निगाहों को बंद कर ले। कोई वॉलंटियर ख़वातीन है मेरी माँ और बहनें, मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि आप अपने हिसाब से बैठ जाइए, क्योंकि आप कोई शोर गुल अल्लाह का जिक्र की आवाज़ होगी। तो आइए कि सबसे पहले मैं अर्ज करूँ, माँ और मेरी बहनें, आपकी आवाज़ यानी जिक्र के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे मैं पढ़ा हूँ, गर्दनों को खम कर ले, निगाहों को बंद कर ले। इस वक्त हम बागलकोट के सरजमीन पर इस मैदान में नहीं, काबतुल्लाह शरीफ के सामने बैठकर अपने अल्लाह अज़्ज़ व जल का जिक्र करने जा रहे हैं। आए तसव्वुर जमा कर रखे, तसव्वुर कीजिए, इस वक्त हम हरम काबा के अंदर पहुंच चुके हैं, यानी मक्के के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह अल्लाह, कितना ही हसीन तवाफ है, कितना ही खूबसूरत तवाफ है। इस घर का तवाफ फरिश्तों ने किया, अल्लाह अकबर। बल्कि यहाँ एक नेकी करो तो लाख नेकियों का सवाब मिलता है। मेरी माँ और बहनें, आइए आप तसव्वुर कीजिए, जो लोग जाकर आ चुके हैं मक्के को, फिर उनका वो मंजर उन्हें याद होगा। जो नहीं जाके आ चुके हैं तो ये तसव्वुर बना लीजिए कि अल्लाह आपको अपनी हयाती में उम्रे की सआदत हासिल करे, उम्रे की सआदत दे अल्लाह आपको। तो आए कि निगाहों को बंद करते हुए दुनियाई ख्यालात को दूर करे, तसव्वुर कीजिए हम काबतुल्लाह शरीफ के सामने बैठे हैं। आइए अपनी जबान, गुनाह आलू जबान से पाक और साफ करके पाक खुदा का जिक्र करने के लिए तैयार हो जाए। जैसे मैं पढ़ा हूँ, मिलकर पस्त आवाज के साथ ऐसे
बच्चे कोई शोरगुल नहीं, एक अंदाज के साथ पढ़ने की कोशिश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला illallah 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 Allah 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 अजान हो रही है, अजान के बाद दुआ की जाएगी। अजान होने तक तमामी ख़वातीन खामोशी के साथ बैठे रहे, फौरी तौर पर इंशाअल्लाह दुआ की जाएगी।
मेरी माओ और बहनों, आइए दुआ का वक्त हुआ जाता है। जिक्र इलाही के बाद यानी अपने रब से भीख मांगने का वक्त हुआ जाता है और उससे मांगते हैं जिससे मांगने के बाद वो खुश होकर बंदों से कहता है और चाहे तो मांग, मैं अता कर दूंगा। मेरे मौला के खजाने में किसी शय की कमी नहीं है, बस मांगने का तरीका अंदाज नहीं है। आइए हम तस्वूर काबा के बाद अब तस्वूर मदीना चलते हैं, सूए तैबा चलते हैं। अल्लाह अल्लाह, हाजी आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा को देख चुके हैं, काबे का काबा देखो। आओ अब जहाँ हुजूर आराम फरमा रहे हैं, मदीना शरीफ इतना अफजल मदीना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब गुंबद खजरा पे नजर पड़ती है दिलों को सुकून मिल जाता है, बेकरारों को करार मिल जाता है, बेठिकानों को ठिकाना मिल जाता है। आओ सफर अपना मदीने शरीफ के लिए रवा दवा है, करीब बढ़ते चलो। जब एक हाजी जब मदीने शरीफ के करीब पहुंचता है, अल्लाह अकबर, जब ऐसे ऐसे चलता है, नजर जब उठाकर देखता है तो सामने गुंबद खजरा नजर आता है। दिल सुकून से उसका जो मामूर हो जाता है। आए हम भी देखिए, प्यारा गुंबद खजरा नजर आ चुका है, हुजूर का गुंबद खजरा नजर आ गया। अपने कदम को ऐसे ऐसे चलते चले, चलते चले। अब आए बाबू सलाम से दाखिल होते सलाम के लिए। अब अपने हाथ उठाए खवातीन, मेरी माँ और बहनें, सुबह से अब दूर दराज से आई है, कहाँ से आप आई है। नन्हे नन्हे बच्चों को छोड़कर, अपने घर के कामों को छोड़कर आपने एक तवील सफर करके आई है। हजारों की तादाद में खवातीन आई। मेरी माएँ, मेरी बहनें, पूरे हिंदुस्तान बल्कि हर मुल्क में रहने वालों के लिए हम दुआ करते हैं। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जिना बिहा जमीअल अहवाल वल आफात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाल मुल्किल्लाह। सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व या क़ादिल हाजात, ويا قاضي الحاجات، ويا حل المشكلات، ويا مجيب الدعوات، ويا خير الناصرين، ويا غياث المستغيثين، ارحم على جميع المؤمنين والمؤمنات، ارحم على جميع المؤمنين والمؤمنات، يا رحيم المساكين، يا رحيم المساكين، يا ذو الجلال والإكرام، या दुल जलाल वल इकराम, या रहीम, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ला तदलना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़रजतह वला कर्बन इल्ला नफ़स्तह वला मईतन इल्ला रहमतह वला मरीदन इल्ला शफ़ैतह वला मरीदन इल्ला शफ़ैतह। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यातिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार, अल्लाहुम्मा आति नफ़्सी तक़वाहा वज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलिय्युहा व मौलाहा। ऐ करीम, ऐ जब्बार, ऐ माबूद, ऐ पालना, ऐ हकीम, इसके पास जाए, इसके चौकर पे जाए, कौन सा दर है? अल्लाह दुनिया वालों से मांगे तो दुनिया वाले उसे भिखारी कहते हैं, दुनिया वाले से साहिल कहते हैं।
मौला दुनिया देकर एहसान जताती है और तू देकर बेटा बंदे और चाहे तो और मांग। मेरे माबूद सत्ता मेरे करीब हमारे गुनाह इतने हमारे करतूत इतने बुरे हमारे अमाल इतने खराब हो चुके मौला पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक पूरा वजूद गुनाह में डूबा है मौला जहाँ कोई नहीं देखता है वहाँ तू देखता है मौला जहाँ कोई नहीं देखता है वहाँ तू देखता है करीब सत्ता माबूद तू माफ ना करेगा तो कौन माफ करेगा अल्लाह तू माफ ना करेगा तो कौन माफ करेगा अल्लाह एक ख़वातीन इस्लाम यहाँ जमा हो चुकी है मौला तुझे वास्ता पंजतन पाक का तुझे वास्ता सहाबे रसूल का तुझे वास्ता सज्जदा बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मौला उनके सदके में मौला हमारे हर करतूत को माफ कर दे हमारे छोटे बड़े गुनाहों को माफ कर दे अल्लाह हमारी मग़फ़िरत अता कर दे मौला हमारी बख्शिश अता कर दे हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा पूरे उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे ए करीम है जब्बार है सत्तार मेरे अल्लाह जो बीमार है किसी का बच्चा बीमार है किसी की माँ बीमार है अल्लाह किसी की बहन बीमार है कहीं लोग बीमार है कहाँ से लोग दुआओं की दरख्वास्त करते हैं मौला तुझे इमाम ज़ैनुल का वास्ता तुझे सैयदा ज़ैनब का वास्ता तुझे करबला शरीफ वालों का वास्ता अल्लाह पूरे दुनिया भर में जो लोग बीमार है सबको शिफाए कामिला वाजिला दाइमा अता कर दे हमारी माओ को शिफा अता कर दे हमारे वालिदैन को शिफा अता कर दे ए अल्लाह ए करीम मेरे अल्लाह जो लोग अपने माँ बाप दुनिया से कूच होकर चले गए जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत होकर चले गए तू बेहिसाब उनकी मग़फ़िरत अता फरमा जिनके माँ बाप हयात है उनके माँ बाप उम्र खिदर अता करते उम्र दराज अता करते एक करीम है सत्कार है करीम मेरे माए और बहने जमा हो गए हाथ उठाए भीख मांग रहे अल्लाह मुरादे लेकर भीख मांग रहे किसी बच्ची का नसीबा नहीं बनता किसी का जोड़ा नहीं बनता है जोड़ा आता है रिश्ता आता है तो वापस चले जाता है माँ ने अपना दिल उदास किया चेहरा उदास हो गया मेरे करीब सत्ता ऐसे कहीं पहले पे जोड़ा बैठे अल्लाह ए मौला ए 70 माओ से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करने वाले खुदा आज तेरे बारगाह में साइल बनकर सवाल करते मेरे करीब तुझे बीवी सोबरा का वास्ता अल्लाह तुझे शहर बानों का वास्ता एक करीम बेजोड़ा को जोड़ा अता करते बेजोड़ा को जोड़ा अता करते जिनके बच्चे जिनके गोदे औलाद से खाली है औलाद तेरे दर बदर ठोकरे खाते हैं अल्लाह तुझे हजरत अब्बास सलम बरदार का वास्ता मौला उन्हें नेक औलाद अता करते जिनकी औलाद है उन्हें नेक सहारे बनाते हमारे औलाद को हमारी आंखों के लिए ठंडक बनाते मेरे करीम मेरे मौला ए अल्लाह जो माए और बहनें मुरादें लेकर बैठी है तेरे दरबार से जो खैरात तकसीम होती है मौला उनकी मुरादों को पूरी अता करते उनके मुरादों को पूरी अता करते मौला अच्छे काम की तौफीक अता करते फिक्र आखिरत की तौफीक दे अल्लाह हमारे माए सजदे से खाली बन गए बहनें सजदे से खाली बन गए सजदे का जब वक्त हो जाता है अल्लाह वो नमाज नहीं पढ़ते तेरे महबूब ने फरमाया बेनमाजी प्यासा मरेगा बेनमाजी प्यासा मरेगा बोला कहीं यकीनन तेरे महबूब ने सैयदा से बहुत प्यार किया हुजूर ने अपने शहजादी छोटी बेटी से बहुत मोहब्बत किया बहुत प्यार किया
सैयदा अम्मा फातिमा जब हुजूर सफर से आते तो हुजूर जब सबसे पहले फातिमा के घर जाते, अल्लाह पर जैसे घर जाते तो फातिमा को प्यार करते, सीने से लगाते। सारी दुनिया हुजूर पर सलाम पढ़ती है, लेकिन हुजूर सैयदा फातिमा पर सलाम पढ़ते। इतनी प्यारी बेटी रात रात लग सजदे में गुजार कर, सजदे में सर रख कर सुबह का जब वक्त आ जाता तो सैयदा कहती, फातिमा मौला तू कितनी छोटी रात बनाई कि तेरी बंदी फातिमा जी भर के सजदा अदा ना कर सके। सैयदा इतनी प्यार से जो है वो सजदा करती। आज हमारे पास वक्त नहीं, हमारे माई बहनों पास वक्त नहीं सजदे का। अल्लाह हमें कब्र में क्या मुंह दिखाए तेरे महबूब का, तेरे महबूब क्या मुंह दिखाए कब्र में जब पहुंचा, जब कब्र में जब कोई सहारा ना होगा, मनो तले पट्टी के अंदर हमें डाल दिया जाएगा। सिंपल से सादा कफन मिलाकर हमें डाल दिया जाएगा, कोई सहारा नहीं। मेरे मौला कोई हमारा सहारा नहीं। कोई हमारा सहारा बल्कि कब्र में तन्हा सोना है, कब्र में तन्हा मुझको सोना, कोई साथ न आएगा। अल्लाह नेक अमल का मार्ग, तेरे हबीब ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ए करीब सत्तार हम सब खुशों के बंदगी अता कर दे, सजदों की तौफीक अता कर दे। मेरे करीम जो बहने अल्लाह सजदे करते हैं तुझे मनाने में, मजीद उन्हें तौफीक अता कर दे। बेनमाजियों को शौक बंदगी अता कर दे। ए अल्लाह, ए करीम, ए महबूब, क्या मांगे तुझसे, तू दिलों के हालात को जानता है, तेरे से कोई छुपी हुई चीज नहीं है। आज कहीं बहने कहीं माए मकरूज है, कर्ज के तले डूब चुके हैं। मौला कर्ज से रात भर नींद नहीं आती है, कर्ज के मामले में किसी बाबा की तारीफ पर चल पड़े। अल्लाह तेरे महबूब ने फरमाया, जो खातून रात के वक्त सोने से पहले सोए वाक़े की तिलावत करती है तो कभी उनके घर फाका कशी नहीं आती है। ए अल्लाह हमारे माओ को, हमारे बहनों को जहाँ घंटों से मोबाइल के अंदर बैठकर अपना टाइम जाया करती है, अल्लाह तूने कुरान दिया, तूने हाथ दिया, तूने सलामत रखा, लेकिन उस कुरान को खोलकर पढ़ने की तौफीक ना हो सके। मेरे मौला ए अल्लाह तिलावत की तौफीक अता कर दे। नाच गानों से बचा ले, गीबत से बचा ले, हसद से बचा ले, तकब्बुर से बचा ले, अनानियत से बचा ले, खुलूस अता कर दे, इखलास अता कर दे, मोहब्बत रसूल अता कर दे, खून के कतरे कतरे इश्क रसूल अता कर दे। मौला जो पहले दूर दराज से आई उनके सफर में आसान फरमा दे। इस सुन्नी इज्तिमा में जो लोगों ने दामे दिरम सुख ने ताउन किया, मदद किया, शामियाना पर, लैट्रिन पर, अल्लाह मेहमानों खिलाने पर, जिन लोगों ने कई महीने तक अल्लाह इस दावत काम के लिए जुड़े रहे, घर घर तक, बस्ती बस्ती में जाकर मेरे माँ बहने ने से आम किया। मौला कुछ कभी दावत का काम करने वालों को महरूम नहीं करता है। तो तेरे दीन के वास्ते जो लोग खर्च करते हैं तो उन्हें महरूम नहीं करता है, बल्कि राबिया बसरी कहती है, बल्कि हुजूर का फरमान सुनाती है, जो राह खुदा में एक देता है अल्लाह उसे 10 अता कर देता है। मौला तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। मौला जिन भाई ने मदद किया, ताउन किया, अल्लाह जो कुछ किया तू बेहतर जानता है। अल्लाह तेरे बारगाह से, तेरे महबूब की बारगाह से जो खैरात तकसीम होती है मजीद उन्हें अता कर दे। कभी उन्हें किसी का मोहताज ना बना दे, बेहिसाब अता कर दे, उन्हें बेहिसाब अता कर दे, उन्हें बेहिसाब अता कर दे। मेरे करीम जिन खवातीन मेरी माँ और बहनों ने या स्टेज के जरिए जो भी वाद और बयान नसीहत किया, मौला इन खवातीन जो आए उन्हें अमल की तौफीक अता कर दे। मौला
कल जो मर्दों का इज्तिमा है, हमारे भाइयों का इज्तिमा है, मौला इस इज्तिमा को कल के लिए हम सबको कामयाबी और कामयाबी से हम कनार फरमा दे। अल्लाह इन्हें मर्दों को आने की तौफीक अता कर दे। खवातीन को जाकर अपने घर के भाइयों को, अपने घर वालों को इसकी दावत देने की तौफीक अता कर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह, जो मर्द कलंदर ने यकीनन जिस जात ने एक वाहिद पर, बल्कि मर्द कलंदर जिसे अल्लाह और रसूल के बारगाह में मक़बूलियत का दर्जा मिल जाए, उसके एक आवाज पर इतनी खवातीन जम जाती है। मौला हमारे कायद, हमारे मोहतरम जो है हुजूर मुफ्ती अबू बकर सकाफी साहब की उम्र में बरकतें अता कर दे, उनकी मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह उनका साया अहले सुन्नत पर कायम व दायम फरमा। मौला तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे ने पाक के सत्य तुफैल उनकी हर मुरादों को पूरी अता कर दे, उनकी हर दावती काम की मुरादों को पूरी अता कर दे, उनके नेक इरादों को कामयाब फरमा दे। यकीनन जो इदारे चल रहे हैं, मौला उनके इदारों को रूज अता कर दे, तरक्की अता कर दे, तरक्की अता कर दे। जो मुईन है, जो खिदमत गुजार है, अल्लाह उन सब के अंदर इत्तेहाद और मोहब्बत मजीद अता करके ऐसे सुन्नियत के लिए मजीद हम सबको खिदमत की तौफीक अता कर दे। जो खिदमत करते हैं अल्लाह सबको बेहिसाब अता कर दे। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किल हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबला रख शहीद करबला के वास्ते, शहीद करबला के वास्ते, सैयद सच्चाद के सत्ते में साजिद रख मुझे इल्म हक दे, बाकरे इल्म हुजा के वास्ते, पैरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक का हक अपने वाहिद दुनिया के वास्ते हिंदुस्तान को अमन शांति का रहवारा बना दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमामी ख़वातीन सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाइए। जी ख़वातीन सलातो सलाम करें। जी वहीं बैठे रहे क्योंकि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर साहिब क़िबला की तरफ से पैगाम आया है, आप तमाम हज़रात, तमाम ख़वातीन इस पैगाम को बगौर सुनिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम माँ बहनों से गुजारिश की मुझे, कल मर्दों का इज्तिमा है, मैं जो है ये बात आपके सामने नहीं बोल सका। जो कल मर्दों का इज्तिमा, लिहाजा आप जो है अपने तमाम घर वालों को जो है, अपने बेटों को, अपने जो है वालिद को, अपने शोहर और अपने बच्चों को जो है इसमें कल के इज्तिमा में आप जरूर आप खुद जो है उन्हें भेजने की कोशिश करें, उन्हें भेजें, उन्हें समझा कर भेजेंगे। इज्तिमा बहुत अच्छा होगा बोलिए, आप खुद जो है तमाम को भेजने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला अच्छा करे। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम जो आए हैं सबके वास्ते मेरी दुआ है, और मैं अपने रुमाल वहाँ छोड़ के आया हूँ। आप जो भी उसे नहीं करना चाहें तो रुमाल से आप रुमाल से मुसाफिर रुमाल लेके जो है छुए, अल्लाह जो है पढ़ाई का जो है रुमाल है, जो रुमाल में दी गया है दो रुमाल को पकड़े, बंदा और करके अपने दो रुमाल को पकड़ लिया, आप दुआ करते हैं अल्लाह जो आपकी दुआ कबूल फरमाए। और आप तमाम ख़वातीन के लिए खाना एकदम तैयार है, आप खाना खाकर ही इसके बाद खाना खाएं, खाना कर दुआ देकर ही आप इसके बाद से जाओ। अस्सलाम वालेकुम। गली गली तबा
जो अपने दे खुदा, जिनको जो अपने दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों, सल्ले अला शफीअना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीअना।